हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी सब कुछ चला गया है। अनफॉर्चुनेटली जूम के अंदर वो सेव नहीं होता है शायद, जो वाइट बोर्ड था। अभी प्रॉब्लम हो गया, फिर से निकालना पड़ेगा बहुत कुछ। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस, हेलो। यस सर। तो कैसा क्या क्या किया था पता नहीं अभी। सर, these are the technical issues and with online learning, and such kind of issues you will face when you will be working in मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज। पता नहीं है कितना, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 से लेके 10 तक है। यहाँ पे 1 2 लिखेंगे है ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। तो ऐसा कुछ तो किया था, सॉरी। हेक्सागोन है, हेक्सागोन बोले तो ऐसा कुछ तो 6 साइड्स। ओके, लॉजिकल कंडीशन एलसी, स्टेटमेंट नंबर 3 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट होगा। कब होगा? हेलो, ट्रू आएगा तो यस। यस सर। हाँ, फॉल्स हुआ तो वो डायरेक्ट किधर जाएगा? स्टेटमेंट नंबर ये 7। सेवन। हाँ, 7 थोड़ा सा नीचे लेंगे। फॉल्स हुआ तो इधर जाएगा, यस। हेलो, यस सर। here once again I'm explaining है ना। इनिशियली है ना, इट स्टार्ट्स विथ है ना, स्टार्ट ओवेल रहेगा यहाँ पे किधर, तो स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग है ना स्टेटमेंट नंबर 2, it will go to this logical condition, yes. यस सर। Machine will evaluate is this true or false, and logical condition is true or false. If it remains true, it will execute statement number 3, statement number 4, statement number 5, statement number 6. After executing statement number 6, further it will go to an logical condition. Again logical condition is tested. If it remains true, again it will go to statement number 3, statement number 4, statement number 5, statement number 6. After executing statement number 6, further it will go to checking this logical condition. If it remains again true, it will go to statement number 3, statement number 4, statement number 5, statement number 6. Again it will go to logical condition. Again it will check is it true or false. If it remains true, again it will execute statement number 3, 4, 5, 6. And in this way this cycle gets repeated. Hello, okay. यस सर। When this logical condition will become false, जब लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके immediately control of the computer will jump towards this statement number 7 and further program gets executed until and unless it will be executed in looping way, in cyclic way. Statement number 3, 4, 5, 6, okay, these statements will be executed in looping way, in cyclic way. जब ये लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा तभी जाके वो स्टेटमेंट नंबर 7 के बाद फिर 8 आएगा, फिर बाद उसके 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा और बाद में जाके एंड होगा। हेलो, एंड, यस। सो दिस इज लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। काय अडचण, डाउट, एनी डाउट? कैसे हो रहा है, समझ में आया क्या? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। कोण सांगेल फ्लो कसा होतो इकडे फास्ट? आपण आपलं रेकॉर्ड होते का नाही माहित नाही बरं का. येस, रेकॉर्डिंग इज ऑन. पता नहीं. यस सर. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, वेरी गुड. बताओ कैसे एग्जीक्यूट होगा, है ना. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे होता है एग्जीक्यूशन फ्रॉम दिस डायग्राम. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन? हेलो, फटाफट.
सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? हेलो, स्टेटमेंट नंबर 1 आहे का कोण पलीकडे? समजलंय का? हेलो, responses are very important. And have you understood this looping control statement? सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होने के बाद व्हाट विल हैपन? लॉजिकल कंडीशन विल बी टेस्टेड. इफ इट रिमेन्स ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 5, 6 will be executed. After executing statement number 6, it will go to again and back to this logical condition. It will be determined. If it is it is remaining true, again it will execute statement number 3, 4, 5, 6. Again it will check logical condition. If it remains true, again it will execute statement number 3, 4, 5, 6. If again it will go to checking this logical condition. If it remains true, again it will execute statement number 3, 4, 5, 6. कब तक होगा ये? हेलो, जब तक कंडीशन ट्रू है. हाँ, जब तक कंडीशन ट्रू होता है ना, जब तक कंडीशन है ना ट्रू है. When condition will remain false, immediately it will jump towards statement number 7. Statement number 7 gets executed. Then 8 will be executed, 9 gets executed, 10 gets executed, and in this way program gets ended. तब जाके प्रोग्राम एंड होता है. यस, हेलो, यस सर. कहानी खत्म है यहाँ पे. अभी हम सीखेंगे है ना फर्स्ट जो उसमें से है ना डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स वी आर स्टार्टिंग. जो पहला वाला है ना डिसीजन, जिसमें इफ स्टेटमेंट. लेट अस स्टार्ट. हेलो, इफ. ओके सर. ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे को नोट्स ओपन करता हूँ मैं. गिव मी 1 मिनट. कहाँ पे गया है ना नोट्स? हाँ, यस, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, यस. Yes, sir. थोडंसं बघा ना, हे सगळं बघा ना, इकडे दिलेलं आहे. ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस. अभी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं, ठीक है, वो भी मीनिंग है. कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट. तो दिस इज द इफ स्टेटमेंट. इफ अगर देखा गया तो वो स्मॉल केस लेटर में लिखा है. इसका मतलब ये कीवर्ड है. कीवर्ड बोले तो हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड. ओके, चैप्टर नंबर 1. हेलो, यस सर. व्हाइट कलर आएगा इसके लिए. इफ के लिए व्हाइट कलर आएगा. अभी देखो सिंटैक्स क्या है ना. सिंटैक्स यू कैन बाय हार्ट. यू शुड नॉट सपोज टू बाय हार्ट द प्रोग्राम्स. ये आप किधर तो लिख के ले लो है ना. बाय हार्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स इज नॉट अलाउड इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का बाय हार्ट करना अलाउ नहीं है. ठीक है, इफ यू वांटेड टू बाय हार्ट समथिंग, सो सिंटैक्स यू कैन बाय हार्ट. अगर कुछ बाय हार्ट करने का है, काहीतरी पाठ करायचा असेल तर ते सिंटॅक्स पाठ करा. प्रोग्रामला पाठ करायचं नाही. लक्षात घ्या ना, प्रोग्राम यू शुड नॉट सपोज टू बाय हार्ट. बिकॉज प्रोग्राम जो है वो करोड़ों में रहता है ना. करोड़ों प्रोग्राम्स काय काय पाठ करणार बघा ना. It is not possible. It is not practically feasible and possible. Therefore, you should not suppose to by heart the program. If you wanted to by heart, you by heart the syntax. Will it be okay? Hello. Yes. ओके सर. अभी देखो है ना, if कैसा है सिंटैक्स देखो है ना. if वो जो if है IF जो लिखा है वो स्मॉल केस लेटर में ही चाहिए हमको है. यू कैनॉट यूज है ना कैपिटल लेटर्स. उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आता है. राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमारा लॉजिकल कंडीशन रहेगा. यस, हेलो, यस सर. ये लॉजिकल कंडीशन राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखने का है. इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नॉट सपोज टू गिव सेमी कोलन. यहाँ पे सेमी कोलन देने का नहीं है. ये गलत मीनिंग है. अभी तक हमने सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट को दिया है ना. सिक्वेंशियल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन वी हैव गिवन. यस, यस सर. यस सर. इसके लिए
जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर लॉजिकल कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं देने का है, डॉट भी नहीं देने का है, कुछ नहीं देने का है, ठीक है। सिंटैक्स समझ लो है। ओपनिंग करली ब्रैकेट, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट एक ही है। ये जो है वो क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। तो ओपनिंग जैसा हमारा मेन के बाद है ना, मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट रहता है ना, आफ्टर गेट सी एच क्लोजिंग करली ब्रैकेट रहता है, वैसे ही है ना इफ स्टेटमेंट के लिए ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स आल्सो वी कैन यूज एंड, तो उसको हम बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम बॉडी बोलेंगे, इसको हेलो, ये जो है हमारा बॉडी है। हेलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट को हम बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट बोलेंगे। हेलो, ओके। Yes, sir. अभी समझ लो एंड, according to this syntax, when logical condition remains true, entire body of if statement gets executed। ये सब कुछ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, कब होगा? हेलो, Condition true आला। हाँ, ये कंडीशन ट्रू आने के बाद ही वो बॉडी जो रहेगा हमारा इफ का वो एग्जीक्यूट होगा। अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू नहीं आता है, वो फॉल्स होता है, ठीक है, तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हेलो, यस, समझ लगा? डन? हेलो, यस, have you understood syntax of if statement? Please give an responses. Hello, समजलंय का? हेलो, काय आता अवघड झालाय ना? हेलो, आवाज येतो का? हो सर. हा, एकाने कुणीतरी रिस्पॉन्स द्या ना, प्रत्येक वेळेस त्यांनीच रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे असं काय नाही ना, सगळ्यांनी जरी रिस्पॉन्स दिला तर नो इश्यूज आहे ना, अनम्यूट करून बोलत चला आहे. Here, I hope you have understood an if statement. Let us try to write a small program through which I will give a small kind of demonstration. तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे, देखो है if statement कैसे यूज होगा. हाँ, is it visible? Yes, yes. Yes, sir. नाम दे रहा हूँ 100.c and here I will write an a C program to understand if statement. If statement समझने के लिए fi, let us include our header files. Void main opening curly bracket, ठीक है, clr ser clr scr and get ch. So before clr ser and get ch we can declare our variables. So integer type of variable यूज कर रहा हूँ a बोल के, ठीक है, a जो है वो integer type of variable है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 10. अभी यहाँ पे if स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, if राउंड ब्रैकेट, सिंटैक्स देखो कैसा है, क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, उसके अंदर है ना प्रिंट एफ, आई वांटेड टू डिस्प्ले दिस मैसेज स्लैश एन वेलकम, हमको वेलकम मैसेज दिखाने का है, ठीक है। कब? यहाँ पे कुछ तो लॉजिकल कंडीशन लिखना पड़ेगा, अगर वो ट्रू होता है तो ही वेलकम मैसेज एग्जीक्यूट होगा. इट मींस इट विल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट. यस, हेलो, Yes, sir. यहाँ पे लिखा मैंने a इज इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? a का वैल्यू 10 दिया है, 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? True. True. अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू होता है तो ही वो ये एंटायर बॉडी जो इफ का है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना, वेलकम मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा. यहाँ पे डिसीजन स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन है, यहाँ पे डिसीजन ले रहा है ना मशीन, ये ट्रू रहेगा तो ही बॉडी एग्जीक्यूट होगा. लेट अस एग्जीक्यूट. Yes, sir. Yes, sir. वेलकम मैसेज दिखाई देगा क्या नहीं देगा? हेलो, Yes, sir. दिखाई देगा, ठीक है. यस, यस. Yes, sir. अभी देखो है,
इसका लॉजिकल कंडीशन जो है वो फॉल्स करता हूं मैं, अभी क्या होगा? वेलकम मैसेज दिखाई देगा? नहीं 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 सर. नहीं दिखाई देगा, वो स्किप करेगा है ना. एंटायर बॉडी विल बी स्किप्ड बाय द प्रोग्राम. यहाँ पे हमने कमेंट नहीं यूज किया है, फिर भी वो स्किप करेगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मैं रन कर रहा हूँ, देखो. वेलकम मैसेज नहीं आया. हेलो, यस. Yes, sir. सो जब लॉजिकल कंडीशन ट्रू होता है तो ही बॉडी जो है इफ का वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये इफ स्टेटमेंट है. यस, लेट अस गो टू नेक्स्ट. हेलो, Yes. ठीक है. अभी देखो है ना, इफ समझ में आया, ऐसा समझ के है ना आगे जा रहे हैं हम. इफ यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देने का है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देने का है, वो ध्यान में रखो. ओके, सो लेट अस गो टू नेक्स्ट, दैट इज इफ एल्स. अभी सबसे पहले है ना इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू विल यूज है ना इफ स्टेटमेंट, व्हेन यू हैव ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी. अगर आपके प्रोग्राम में सिंगल पॉसिबिलिटी है तो ही जाके हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. हेलो, ओके. Yes. अभी इफ एल्स का मतलब क्या है? इफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुआ, उसका एग्जाम्पल भी समझ के लिया हमने, वी अंडरस्टूड है ना एग्जाम्पल ऑफ. अभी इफ एल्स क्या है? इफ एल्स, तो इफ एल्स, इफ का मतलब है इफ. इफ का मतलब है मराठी में जर बोलते हैं, हिंदी में क्या है? अगर. यस, Yes, sir. अगर ये हुआ तो कुछ तो आहे. तो अगर आहे, मराठीमध्ये जर म्हणतो आपण, हिंदीमध्ये अगर. एल्स का मतलब क्या है? मराठी में नाही तर आहे. नाही तर काय? ओके. जर तर नाही आहे, जर तर नाही आहे, जर नाही तर. एल्स मीन्स हिंदी में क्या रहेगा? नहीं तो क्या. हेलो, अगर, अगर मतलब ये अगर, और ये जो है एल्स मतलब नहीं तो क्या. नहीं तो क्या. हेलो, यस. हेलो. Yes, sir. अभी 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 है ना, यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन लिख रहा हूँ मैं. लॉजिकल कंडीशन एलसी, एलसी मीन्स लॉजिकल कंडीशन. अभी देखो है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ये यही ले लेंगे है ना, अच्छा से लिखा है यहाँ पे, सॉरी. ये देखो है ना, इफ लॉजिकल कंडीशन इन द राउंड ब्रैकेट, जैसा इफ का स्टेटमेंट है वैसा ही है यहाँ पे. यस. हेलो, इफ का स्टेटमेंट, इफ का जो सिंटैक्स है वैसा ही सिंटैक्स है यहाँ पे. यस. अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट नंबर 1 2 एग्जीक्यूट होगा. यस. हेलो, अगर लॉजिकल कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट नंबर 1 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा. हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज है ना, प्लीज है ना, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्सेस. यस, नो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो, नो कहने का है वहां पे. ऐसा चुप नहीं बैठने का है ना. मेरे को रिस्पॉन्सेस मिलते हैं ना डिवीजन बी और जी से है ना, फटाफट हम आगे जाते हैं ना. सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस आई एम नॉट गेटिंग है ना फ्रॉम योर डिवीजन. आई डोंट नो है ना वेदर आवर फ्रीक्वेंसी गेट्स मैच्ड और नॉट, दैट आई डोंट नो. आई होप आई एम कंसिडरिंग है ना दैट फ्रीक्वेंसी हैज मैच्ड. यस, पता नहीं. Yes, sir. थोडासा रिस्पॉन्स द्या आहे ना. मी जे काय म्हणतोय तिथे ते राहावा आहे ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली यू विल गेट इट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट. सो ये जो पहला है जिसको मैंने ऐसा रेड लाइन से है ना मार्क किया है ना, ये जो है वो इफ का सिंटैक्स है ना. लॉजिकल, इफ लॉजिकल कंडीशन विल रिमेन ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट नंबर 1 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा. बराबर इफ स्टेटमेंट में सीखा है अभी हमने. यस. Yes, sir. Yes, अभी sir. एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ तो अलग एग्जीक्यूट करने का है आपको, तब जाके इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा. हेलो, इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो
वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा, है ना. बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सिंपली इट विल जंप फ्रॉम लॉजिकल कंडीशन टू एल स्टेटमेंट, एंड वॉट एवर यू हैव मेंशनड इन द एल स्टेटमेंट, all those statements gets executed. Hello. Okay. Okay, sir. फॉल्स हुआ तो एल्स के पास जाके, एल्स के बॉडी, ये एल्स का बॉडी है, दिस इज बॉडी ऑफ एल्स, ये एल्स का बॉडी है, ये जो है वो इफ का बॉडी है. इफ का बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा? हेलो. 1 2 ट्रू आले तर स्टेटमेंट. आता काय करा, 1 2 स्टेटमेंट ट्रू येत नसतात, वो लॉजिकल कंडिशन ट्रू येत असते. हेलो. हा. परत एकदा सांगा. लॉजिकल कंडिशन ट्रू आल्या. हा, लॉजिकल कंडिशन ट्रू आली, इफ ची लॉजिकल कंडिशन ट्रू आली तर स्टेटमेंट नंबर 1 आणि स्टेटमेंट नंबर 2 एक्झिक्यूट होणार. बरोबर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसको हम बोलेंगे इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. इफ का बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा? लॉजिकल कंडीशन ट्रू आता है तो ही इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. यस. Yes. यस अगर सर. लॉजिकल कंडीशन फॉल्स रहता है तो क्या होगा? कौन सा बॉडी एग्जीक्यूट होगा? एल्स का. एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. समजलं का? Yes. Archan, if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will write one small program where we will understand how to use if-else statement. Yes? Hello. Okay, sir. थैंक यू, है ना. थैंक यू फॉर योर ओके, है ना. इतना लेट मत करो, है ना. ओके. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ तो बीच में बोलो, है ना. 4-5 सेकेंड्स वी आर वेस्टिंग. सी यार, टाइम इज मनी, है. वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा ना तब जाके, है ना, व्हेन यू विल स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग इन एनी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. इतना डिले नहीं करने का है हमको, है. फटाफट रिस्पॉन्सेस देने का है. पता नहीं ये कब होगा. ठीक है, चलो, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, है ना. दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं. स्क्रीन. हेलो, इज इट विजिबल? No, sir. सिंटैक्स समजला का? सिंटॅक्स समजला का हो? Yes, sir. ठीक आहे, व्हेरी गुड मॅम. Hello, sir. हां, बोला फास्ट. Sir, else पण false आल्यावर. एल्स फॉल्स होत नसते. एल्स मध्ये कुठे कंडिशन लिहिले बरं का. व्हेरी गुड क्वेश्चन. एल्स जो है, ठीक है, एल्स जो है यहाँ पे कंडीशन लिखा नहीं है. हेलो. यस. Yes, sir. यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लिख नहीं सकते हम. लिखा तो एरर आएगा, है ना. ये फॉल्स नहीं होता है. एल्स जो है वो फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि एल्स का मीनिंग क्या है? अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ तो दिखाने का है आपको. यस. Yes, sir. यस सर. लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन प्रोग्राम. है नाउ इज इट विजिबल? है ना, प्रोग्रामिंग विंडो, इज इट विजिबल? हेलो. हेलो. No, sir. यस. यस सर. Sir, yes. 102.c f5 a C program to understand if else. F2. Let us include our header files. CLR ACR to clear the previous output screen. Get CS to hold the output screen. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे int a लिखा मैंने. ओके. ए का वैल्यू सेम है, 10 दिया. इफ देखो अभी हम पहले कंडीशन ट्रू करेंगे. ए सिंपल ले रहा हूँ मैं, इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज कुछ तो /n लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू
ये मैसेज दिखाने का है। अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में जाएगा, अगर लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हो गए तो एल्स में जाएगा, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। यस, हेलो, समझ में आया क्या लिखा है? हेलो, अभी यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू sir. है तो वो ये एग्जीक्यूट करेगा, एल्स के यहाँ पे नहीं जाएगा, एल्स का पार्ट जो है वो स्किप होगा और डायरेक्ट हमको आउटपुट मिलेगा लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू। आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। यस, Yes, sir. अभी हम ये लॉजिकल कंडीशन जो लिखा है उसको हम फॉल्स करते हैं। अभी फॉल्स हुआ कंडीशन। यस, ए का वैल्यू 10 है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10 ये ट्रू है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10 ये फॉल्स है। यस, Yes, sir. तो वो एल्स के पास जाएगा, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स, वो मैसेज दिखाएगा, ये जो है वो स्किप करेगा, ये पार्ट को स्किप करेगा, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। हेलो, Yes, sir. अभी इसका एग्जीक्यूशन जो है ना, स्टेप बाय स्टेप हाउ प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड बाय प्रेसिंग F7 की यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, हेलो, Yes. हाँ, so I am pressing an F7 key. When I will press F7 key, so initially control of the computer will be at main function. इसका मतलब क्या रहेगा कि our program we started from main function. So I am pressing F7 key. So are you getting that green colored line? And main के यहाँ पे वो green colored line है. It means our program we started to execute and it starts है ना executing. Lecture चालू है माझं. Lecture चालू आहे. हेलो, ओके, हेलो, Yes, sir. Okay. so I'm pressing F7 key now. Before and pressing F7 key, let us try to open an watch window and how to open watch window. So that watch option you will find in Windows and Windows option के अंदर watch window मिलेगा आपको. So I'm opening this. So यहाँ पे ऐसा मिला हमको, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं ना प्रोग्राम में, दिस वेरिएबल्स यू कैन ऐड इन दिस वॉच विंडो बाय प्रेसिंग एंटर की। आई एम प्रेसिंग एंटर की, लेट अस ऐड है ना वेरिएबल ए, सो वो ऐड हो गया है। एज आवर कंट्रोल इज एट मेन फंक्शन, अभी हम मेन फंक्शन के अंदर गए नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज डिस्प्लेइंग एन इन वॉच विंडो, इट इज डिस्प्लेइंग मैसेज अनडिफाइंड सिंबल ए। यस, पता नहीं है मशीन को ये ए क्या है। हेलो, Yes, sir. now I am pressing F7 की, जैसे ही F7 की प्रेस होगा, वो जो कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन में है अभी, वो कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर जाएगा एंड वी विल गो टू है ना CLR SCR फंक्शन के, वहां पे वो कंट्रोल जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व। यस, हेलो, अंदर गए हम मेन फंक्शन के अंदर। हेलो, यस। हाँ, तो यहाँ पे इनिशियली अनडिफाइंड सिंबल ए करके एक मैसेज था वॉच विंडो में, तो वो चला गया है। और ये इंट ए जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, इंट ए सेमीकोलन, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन, मशीन विल अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ ए इज इंटीजर, और वो कौन सा भी एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा उसके मेमोरी में, जो -29,222 वैल्यू विच इज अवेलेबल हियर एंड दैट इज एक्चुअली गार्बेज वैल्यू। और वो क्यों आया है? बिकॉज मशीन को समझ में आ गया, पता चल गया है ना, ए जो है वो इंटीजर है। हेलो, यस, यस। आई एम प्रेसिंग अल्ट F5 की, तो हमको ये जो प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लॉजिकल कंडीशन रिमेन फॉल्स। यस, प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन है, जो इसके पहले हमने जो एग्जीक्यूट किया था उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है वो। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. now our control is at CLR SCR. when I will press F7 की, तो CLR SCR जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब CLR SCR एग्जीक्यूट हो गया है। if I will press Alt F5 की, तो जो प्रीवियस मैसेज था वो क्लियर होगा। यस, हो गया वो क्लियर। हेलो, Yes, sir. now we are at स्टेटमेंट नंबर 3, जहाँ पे लिखा है a is equal to 10। यहाँ पे हम a का वैल्यू 10 स्टोर कर रहे हैं मशीन के अंदर। तो
तो ये जो गार्बेज वैल्यू है -29,222 वो रिप्लेस होके 10 वैल्यू इसके मेमोरी में स्टोर होगा। ए वेरिएबल जो है, इन दिस ए वेरिएबल 10 वैल्यू कंप्यूटर स्टोर्स। हेलो, Yes. I am pressing F7 key. In the watch window, you can observe this -29,222. It will be replaced with 10. I am pressing F7 key. You observe it. Yes? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे जो लॉजिकल कंडीशन है वो चेक होगा है ना। मशीन एग्जीक्यूट्स एंटायर प्रोग्राम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड हाउ प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टेप बाय यूजिंग दिस वॉच एंड F7 की। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 10, ये मैसेज है, ये लॉजिकल कंडीशन है, सॉरी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? Fall. Fall. False. Therefore, after pressing F7 key, machine will jump from this logical condition to else part. यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेगा। Yes? Else में गया हो, hello, false Yes, है sir. बोल के else में गया, and logical condition remains false. This message computer will display on the output screen. दिखाया? Yes, sir. समझ में आया कि if else कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? हेलो, अभी हम इसको ट्रू करके देखेंगे, ठीक है, फास्ट। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। F7 एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टेड विथ मेन फंक्शन। F7 आउटपुट स्क्रीन क्लियर होगा। F7 हो गया क्लियर, एंटर। ए का वैल्यू 10, जो गार्बेज है वो रिप्लेस होके 10 होगा, सॉरी F7 है, 10 हुआ। यस, 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? True. Therefore it will execute, logical condition remains true. जंप मारा उसने, if के अंदर जंप मारा। यस, Yes, sir. Yes, sir. अभी else के अंदर नहीं जाएगा। if का एग्जीक्यूट हो रहा है तो else के वहां पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट गेट ch के वहां पे जाके जाएगा, है ना, else को स्किप करेगा। यस, हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. in this way, है ना, logical condition remains true. Such kind of message we are getting on the output screen. Have you understood this? Yes, sir. यहाँ पे हमारा इफ एल्स जो है वो हमने कवर किया है। कुछ डाउट है तो पूछो है। हेलो, कुछ इश्यूज है तो पूछो। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू एग्जीक्यूट है, हाउ टू यूज इफ एल्स? कब यूज होगा ये? व्हेन यू हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कितना पॉसिबिलिटीज रहेगा आपके पास? Two. हेलो, Two possibilities. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू कैन कंसिडर? True, sir. हाँ, Two, sir. दो पॉसिबिलिटीज रहेगा तो ही हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। एक तो ट्रू होगा वो, नहीं तो फॉल्स होगा। ट्रू या फॉल्स है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज के लिए इफ एल्स यूज होगा। लेट अस गो टू नेक्स्ट। Yes. Yes. Yes, sir. एलसीफ लैडर है, जो सीडी है ना, सीडी बोलेंगे हम, तो सीडी कब आएगा है ना? When you have है ना more than two possibilities, P लिखता हूँ यहाँ पे, P, more than two possibilities अगर आपके पास रहेगा तो हमको एलसीफ लैडर यूज करना पड़ेगा। हेलो, ओके? Yes, sir. अभी देखो है, एलसीफ लैडर यूज करना पड़ेगा। उसका सिंटैक्स देख के इमीडिएटली वी विल राइट द प्रोग्राम। तो यहाँ पे सिंटैक्स है, थोड़ा सा स्क्रीन अनजूम करके है ना दिखा रहा हूँ मैं। एलसीफ लैडर का यहाँ पे सिंटैक्स है, सबसे पहले मोर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है बोलने से क्या होगा? मोर नंबर ऑफ लॉजिकल कंडीशंस। यस, Yes. Yes, sir. पॉसिबिलिटीज बढ़ गया मतलब लॉजिकल कंडीशंस बढ़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा। इसलिए दो पॉसिबिलिटीज से ज्यादा पॉसिबिलिटीज इफ यू आर थिंकिंग इन योर प्रोग्राम, इन दैट केस एलसीफ लैडर वी विल हैव टू यूज। और ये उसका सिंटैक्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स। इफ, ओके, ये पहला इफ है। इन द राउंड ब्रैकेट लॉजिकल कंडीशन 1 इज मेंशन्ड एंड दिस इज द बॉडी ऑफ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। यस, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 है। हेलो, Yes, sir. उसके बाद एलसीफ लिखा है। एलसीफ बोले तो एलसीफ लैडर है, एलसीफ बोले तो एलसीफ लैडर इन द राउंड ब्रैकेट
थोड़ा सा म्यूट करो, म्यूट करो, थोड़ा सा म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, तो एल्सिफ के बाद है ना लॉजिकल कंडीशन नंबर 2 है यहाँ पे। अगर लॉजिकल कंडीशन नंबर 2 के बाद है अगेन दिस इज द बॉडी एंड ये जो बॉडी है ये इफ एल्स का बॉडी रहेगा, मतलब लॉजिकल कंडीशन नंबर 2 का बॉडी रहेगा ये, उस इफ का बॉडी रहेगा। हेलो, यस। Yes, sir. सिमिलरली अगेन एल्स इफ लॉजिकल कंडीशन नंबर 3, ये जो बॉडी है ये लॉजिकल कंडीशन नंबर 3 का बॉडी रहेगा, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 5 एंड 6 मेंशन किया है। हेलो, ओके। Yes, sir. उसके बाद खत्म हो गया है ना, 3 पॉसिबिलिटीज खत्म होने के बाद 4th पॉसिबिलिटी है, उसके लिए लॉजिकल कंडीशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो स्पेसिफिक रहेगा। तो एल्स और ये जो है स्टेटमेंट नंबर 7 एंड 8 वो इस एल्स का बॉडी रहेगा। यस, Yes, sir. अभी आराम से सुनो एंड सब कुछ क्लियर कर रहा हूं मैं, नहीं तो रहने देंगे ऐसे ही। इफ लॉजिकल कंडीशन 1 विल रिमेन ट्रू, machine will execute statement number 1, statement number 2 and statement number 9. Hello, Yes, sir. Yes, sir. once again I am repeating, if logical condition 1 will remain true, machine will execute statement number 1, statement number 2 and directly statement number 9. Yes, Yes, sir. Yes, sir. this is the first possibility, this is the first possibility for this syntax. Let us go to next possibility. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी देखो है, फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स, तो वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बराबर। हेलो, Yes, sir. यहां से डायरेक्ट जंप मारेगा इधर लॉजिकल कंडीशन नंबर 2। मशीन विल चेक, Yes, sir. machine will check about this logical condition number 2. If it remains true, अगर ये true रहता है तो statement number 3 and 4 will be executed and directly it will jump towards statement number 9. Hello, Yes, sir. Yes. this is the second possibility. I am moving towards third possibility. इसको कैसा अभी सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी, लॉजिकल कंडीशन 1 remains false, it will go to logical condition number 2, it also remains false, it will go to logical condition number 3, and if it remains true then it will execute statement number 5, 6 and 9. Hello, Yes, sir. Yes, sir. this is third possibility. Okay, I'm moving towards last possibility. Logical condition 1 remains false, logical condition number 2 also remains false, logical condition number 3 also remains false. It will jump directly towards else part. यहाँ पे आएगा वो statement number 7, statement number 8 and statement number 9. These 3 statements will be executed. Hello, Yes, sir. Yes. समझ लगा? 4 possibilities. Yes, sir. ये इस सिंटैक्स के लिए है ऐसा n नंबर ऑफ लॉजिकल कंडीशंस यू कैन कंसीडर। ये लैडर जो है उसमें खाली 3 स्टेप्स है, 1 2 3, यस 4 है शायद, ये एल्स पकड़ने के बाद 4 रहेगा, 4 स्टेप्स है, यस 4 sir. पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है मतलब 4 स्टेप्स है। ऐसा आपका जो एलसिफ लैडर रहेगा वो n नंबर ऑफ लॉजिकल कंडीशंस, इफ यू वांटेड टू डील यू कैन यूज इट। ओके, हेलो, Yes, sir. समझ में आया कि एलसिफ लैडर सिंटैक्स कैसा है, कैसा यूज करने का है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी जो है हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स है आई थिंक, यस। Yes, sir. हाँ, उसमें खाली हम एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो एलसिफ लैडर यूज करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रुकेंगे यहाँ पे। विल इट बी ओके? Okay, sir. sir. अभी देखो एन, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, एक पॉइंट है जो P बोलेंगे हम उसको, और हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स है जिसको हम x एंड y बोलते हैं, ठीक है, x एंड y, these two coordinates we have, x and y coordinates we have,
and this is the input and this is the input through keyboard. x and y का वैल्यू जो है वो कीबोर्ड थ्रू इनपुट रहेगा, और जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो मशीन ने हमको बताना चाहिए है ना, मशीन विल गिव है ना आंसर, वो जो है ना, वो जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है. हेलो, यस. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. 0 यहाँ पे रहता है, राइट साइड पे पॉजिटिव x का वैल्यूज रहता है, लेफ्ट साइड में x एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड में x के नेगेटिव वैल्यूज रहता है. यस, नेगेटिव वैल्यूज. वैसे ही y एक्सिस रहेगा, ऊपर में पॉजिटिव y का वैल्यूज, नीचे नेगेटिव y का वैल्यूज. यस, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, x का ऑल पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, y का ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. यस. Yes, sir. What is our problem? We wanted to determine the location of point in appropriate quadrant where x and y are the coordinates which will be the input through keyboard. Now you tell me, if x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? First. Now see here, and something happened in your brain and you are giving answer, first quadrant में आएगा. तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है हमसे, ठीक है, humans are giving answers, so we will have to write a program where a machine will give answer, ये first quadrant में आएगा, खाली input हमारा 1 2 रहेगा. Hello, are you understanding what kind of problem I am talking about it and कौन सा problem हम discuss कर रहे हैं? Yes. Yes, sir. अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया, -1, 2 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? Second. वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. अगेन आई एम मॉडिफाइंग, -1 -2. हेलो, Third. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. +1 -2. 4. हाँ, तो ये इधर रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. अगेन आई एम मॉडिफाइंग सम वैल्यूज एंड क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो आ रहा है. Yes, sir. 0, 0. सपोज इन Origin. 0. हेलो, Origin. तो हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन रहेगा, ठीक है. p का वैल्यू सपोज 1, 0 है, कहाँ पे आएगा? On x-axis. वेरी गुड, ऑन x एक्सिस, एंड बी स्पेसिफिक ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. यस. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने ऐसा लिखा -1, 0, कहाँ पे आएगा? On negative x-axis. हाँ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव x एक्सिस. वेरी गुड. सिमिलरली p का वैल्यू 0, 2 है. हेलो, Positive y-axis. यहाँ पे आएगा पॉजिटिव y एक्सिस. वेरी गुड. p का वैल्यू 0, -1 है, किधर आएगा? यहाँ पे आएगा. हेलो, negative y axis. So how many possibilities we have here? Hello, now you think, Four. huh? How many possibilities we have here? And 8, sir. 9. Yes, Nine. sir. 8. 9. 10 sir, 10. 9. हा म्हणलेलं चुकलं ते, जे कोण 9 म्हणतात आहेत, so we can consider and those who are and giving answer 9, their logic is good and best, excellent, outstanding. बाकी जो गलती हो रहा है वो आप थिंक करो, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है हमारा पॉइंट, सेकंड में रह सकता है, थर्ड में रह सकता है, फोर्थ में रह सकता है. ये 4 पॉसिबिलिटीज हुआ. पॉजिटिव x एक्सिस के लिए एक पॉसिबिलिटी रहेगा, नेगेटिव x एक्सिस के लिए एक पॉसिबिलिटी रहेगा, तो 6 हो गया. पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस के लिए 8 हो गया, और ओरिजिन का जो है वो 9th वाला पॉसिबिलिटी है. लो, Yes, sir. it depends on our way of thinking. Yes. Yes, sir. So maximum number of possibilities we will think. If we are thinking about maximum number of possibilities, then there will be less chances of failure in the logic.
हेलो, Yes, sir. अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो लॉजिकली जो कुछ मिस्टेक्स होने वाला चांस रहेगा, ठीक है, वो कम रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा. यस, so always you think Yes, sir. more number of possibilities to write our code, because we are dealing with machine cannot have and machine cannot think by itself. As a programmer, we are giving instructions and machine is an thinking on behalf of human. Yes, Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम जो है, I hope you have understood. Similarly another problem we are trying to think, we are trying to discuss over here. And suppose एक नंबर है, ओके, ये नंबर जो है, एक तो नंबर पॉजिटिव रह सकता है. यस, हेलो, पहला पॉसिबिलिटी. Yes, sir. नंबर जो है वो नेगेटिव रह सकता है. हेलो, यस, Yes, sir. सेकंड पॉसिबिलिटी. तीसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? Fractional. फ्रैक्शन का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है. फ्रैक्शन में पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है. जीरो. वेरी गुड है ना, जीरो. नंबर एक तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं तो जीरो रहेगा. दीज आर दी थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर दिस नंबर. यस, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो प्रोग्राम अगर लिखना पड़ेगा तो हमको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा या एल्स इफ लैडर? Else if एल्स इफ, ladder. Ladder. हाँ, एल्स इफ लैडर. व्हाई एल्स इफ लैडर? बिकॉज More than 2. हाँ, मोर देन टू पॉसिबिलिटीज वी आर यूजिंग. वेरी गुड. समझ में आया क्या? ये अनदर एग्जांपल. हेलो, वेयर वी कैन यूज एल्स इफ लैडर. हेलो, यस, यस. Yes, sir. अभी और एक प्रॉब्लम, और एक प्रोग्राम, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थर्ड एग्जांपल है. यहाँ पे अगेन सेम नंबर वी आर कंसिडरिंग, उसका दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो वो इवन रह सकता है, सॉरी थोड़ा सा गलती से लिखा है, इवन पहला पॉसिबिलिटी. और दूसरा क्या रहेगा? हेलो, ऑड. हेलो. Yes, sir. Yes. So if any number we are considering, and for that number if you will be considering, if you are thinking about that number is even or odd, तो इसका कितना पॉसिबिलिटी रहता है? दो ही Two. रहेगा. Done. दो ही रहेगा. एक तो नंबर वो इवन रहेगा, नहीं तो ऑड रहेगा. जीरो जो है ना, जीरो वो इवन है. यस, Yes, sir. झिरोला दोन्ही भाग आहे, पूर्ण भाग जातो, बाकी शून्य येते. यस, Yes, sir. तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसके लिए आप एल्स इफ लैडर यूज करोगे या इफ एल से काम चल जाएगा? हेलो, If else. If ये काम else. चल जाएगा. इफ एल से काम चल जाएगा. व्हाट इज द रीजन? Two statement. Two possibilities. हाँ, स्टेटमेंट म्हणू नका है ना, टू पॉसिबिलिटीज. राइट वर्ड इज टू पॉसिबिलिटीज, बिकॉज हियर वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज. ओके, हेलो, Yes, sir. we Yes, sir. have last 4 minutes. Yes, sir. Very good. We have last 4 minutes. Interesting example we will understand and we will stop here. Suppose we wanted to check an eligibility. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, sorry. कोई तो लिख रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है. Disabled. ओके, हाँ. सो एलिजिबिलिटी चेक करने का है मेरे को. एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग. हेलो, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? आई वांटेड टू चेक एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग. वोटर का कितना एज चाहिए? हेलो,
18. 18, ठीक है। तो यहाँ पे एज जो है वो इनपुट रहेगा ना कीबोर्ड थ्रू। अभी देखो है, यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटीज आएगा, एक तो 18 से ज्यादा या 18 से कम। यस, Yes, sir. यहाँ पे लिखता हूं मैं, एज इज ग्रेटर देन 18 और एज इज लेस देन 18। टू पॉसिबिलिटीज कंसीडर किया तो इफ एल्स से काम चल जाएगा। यस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. but I wanted to discuss in detail and this issue, this problem I wanted to discuss with you in detail so that we can understand how more number of possibilities we can think। अभी देखो है, सबसे पहले अगर 18 किसी ने एज डाला, हमको क्या करने का है, अगर वो लॉजिकल कंडीशन कुछ तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लॉजिकल कंडीशन एलसी लिखता हूँ, अगर ये ट्रू हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वोटर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा मैसेज दिखाएंगे। अगर वो फॉल्स होता है लॉजिकल कंडीशन, तो हमको ऐसा कुछ तो मैसेज दिखाना पड़ेगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, लो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऐसा लिखा है, सपोज एज इज ग्रेटर देन 18। अगर किसी ने 18 डाला, 18 एज है, तो उसको हमारा लॉजिक के मुताबिक वो दिखाएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। व्हाट इज द रीजन? Greater than 18. हाँ, ग्रेटर देन 18 लिखा है, बिकॉज ऑफ विच वो फॉल्स होगा कंडीशन। तो हमको 18 भी एज रहेगा तो भी वोटिंग का अधिकार मिलता है, तो कैसा लॉजिकल कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे? हेलो, Greater than equal to 80. वेरी गुड, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। वेरी वेरी गुड। यस, Yes, sir. ऐसा लॉजिकल कंडीशन रहेगा तो 18 भी किसी ने एंटर किया तो उसको मैसेज मिलना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, और इसके बाद एल्स लिखेंगे, एल्स, और एल्स में लिखेंगे कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये इफ है, ऐसा कुछ तो ठीक है। अभी एक देखो है ना, लास्ट 1 मिनट वी हैव, वी सपोज किसी ने तो -5 डाला। हेलो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। somebody कैन एंटर थ्रू कीबोर्ड -5। अगर कोई -5 एंटर कर रहा है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक इट विल डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, बट ये मैसेज गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऐसा वाला एज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ पे सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग ऐसा मैसेज दिखाने से गलत मीनिंग होगा। हमारा जो एल्गोरिदम प्रोग्राम है वो गलत, मशीन जो है वो गलत मैसेज दिखाएगा। अगर -5 किसी ने एंटर किया तो वहां पे मैसेज क्या दिखाना चाहिए? एज शुड नॉट बी निगेटिव। यस, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. विचार करा है ना, विचार करा है ना, प्लीज ट्राई टू थिंक। तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं, और एक पॉसिबिलिटी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यूनिट नंबर 2 वी हैव स्टार्टेड। यस, लेट अस स्टॉप। Yes, sir.